Assalamu alaikum. Today we are going to start our class. In our classes, we learn different kinds of things which are given in the NT tests. In NT tests, the questions which are given from the correct use of the words, vocabulary, subject-verb agreement, and some questions are given to assist the student from the reading comprehensions, from the reading comprehension passages. But today we are going to learn about the subject-verb agreement. You know what is subject-verb agreement? Whenever we use a sentence, we write a sentence, we write subject and verb, and we see what subject has been placed in the sentence. According to the sentence to subject, we place a verb. If we use a subject in singular, we use a singular verb. But whenever we use a plural subject, we use a plural verb. In this way, we can say it is an agreement between a subject and verb. It is an agreement which is out of making sure that sentence parts are agree with one another or not. So we make unity in the sentence. What is the unity? How it is unified? Using singular subject with singular verb, using plural subject with plural verb. In this way, sentence is unified. Such type of sentences are given in the entry tests or in any other type of tests. So today we are going to learn about the subject-verb agreement and its rules. So the first one example is, one cow is sitting on the grass. One cow is sitting on the grass. In this sentence, we see the subject is singular. The subject is singular. Because of the subject singular, we have placed singular verb. Is a singular verb. And in this sentence, two cows, it is subject and it is in plural. Therefore, we have used a plural verb. Is it a singular or is a plural? Both are to be verbs. Is used in singular subjects with singular subjects or is always used with plural subjects. So in this way, we read the sentence and we try to think that how we have placed verbs. One cow is sitting on the grass. One cow is sitting on the grass. Two cows are sitting on the grass. In both the sentences, we see subjects are different because verbs are also different. Subject is singular, verb is also singular. Subject is plural, verb is also plural. In this way, we always try to make the unity. Make a unity in sentences. Okay, we are going to learn different kinds of rules of subject-verb agreement. We take an example of indefinite pronouns. We know indefinite pronouns are many. When we use indefinite pronouns, we use singular verb with singular subject and plural verb with plural subject. So, what are indefinite pronouns? असांखे इहो सम्झणु घुरिजे indefinite pronouns कहिड़ा आहिनि. Indefinite pronouns उहे pronouns आहिनि जंहिंमें यानी ख़ासि तौर ते सब्जेक्ट खे मुबहम रखियो वेंदो आहे. सब्जेक्ट वाज़े न हूंदो आहे. उहो सब्जेक्ट जेको आहे उहो केरु आहे, सब्जेक्ट जेको आहे उहो कहिड़ो आहे. फॉर एग्जांपल जेके असीं चऊं था somebody has left his bag here. कंहिं शख़्स पंहिंजो बैग जेको आहे हिते
रखियो आहे, छॾियो आहे या विसारियो आहे, कुझु बि चई सघे थो। somebody में न कंहिं, उहो कंहिं जो मक़सदु उहो केरु आहे, इट मीन्स इहो इंडेफिनिट थियो, इहो मुबहम आहे। तंहिंजे करे जॾहिं असां इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ कंदा आहियूं त असां इंडेफिनिट प्रोनाउन सां वर्ब जेको आहे सब्जेक्ट जे मुताबिक़ यूज़ कंदासीं। somebody सां असीं हैज़ वर्ब इस्तेमालु कयो आहे, छो त somebody कंहिं हिकु शख़्स ॾांहुं इस्तेमालु कयो आहे, बॉडी जी ॻाल्हि आहे, कंहिं हिकु शख़्स जी ॻाल्हि आहे, तंहिंजे करे वर्ब असां सिंगुलर यूज़ कयो आहे। हाणे हिते जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं सम अचीव, हिते वर्ब जेको आहे असां प्लूरल यूज़ कयो आहे। जेकॾहिं असां हिनखे अचीव चऊं आहे त पोइ वर्ब जेको आहे उहो प्लूरल सिंगुलर थिए हा। अचीव लिखियो आहे, इट मीन्स इहो वर्ब जेको आहे प्लूरल आहे। त सम अचीव ग्रेटनेस बाय हार्ड वर्क, सम हाणे इहो जेको आहे असांखे इशारो ॾिए थो, सेंस ॾिए थो त इहो जेको सब्जेक्ट आहे उहो प्लूरल आहे, तंहिंजे करे असीं वर्ब जेको आहे उहो प्लूरल तौर ते इस्तेमालु कयो आहे। हिते somebody इहो सिंगुलर तौर ते आहे, somebody had, some had, सम सां जेकॾहिं असां लिखणु चाहींदासीं, जेकॾहिं हैज़ या हैव मां कंहिं ॿियो हैव जो वर्ब इस्तेमालु कंदासीं त somebody सां हैज़ रखंदासीं त सम सां हैव रखंदासीं, सम सां हैव रखंदासीं, somebody सां हैज़ रखंदासीं, somebody सां इज़ रखंदासीं त सम सां आर रखंदासीं। जी चवंदा न सम आर born great, त हिते अप्लाई somebody is born great, त पोइ असां ईअं यूज़ कंदासीं। इट मीन्स असांखे सब्जेक्ट खे ॾिसणो पवंदो त सब्जेक्ट जेको आहे उहो सिंगुलर आहे या सब्जेक्ट जेको आहे उहो प्लूरल आहे। जॾहिं सब्जेक्ट सिंगुलर हुजे थो त असांखे वर्ब उनजे मुताबिक़ सिंगुलर रखणो पए थो, जॾहिं सब्जेक्ट प्लूरल हुजे थो सब्जेक्ट जे मुताबिक़ असांखे वर्ब जेको आहे प्लूरल रखणो पए थो। त हाणे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहिड़ा आहिनि? इंडेफिनिट प्रोनाउन जो तादाद जेको आहे उहो त काफ़ी थी सघे थो। सम जेको आहे उहो इंडेफिनिट प्रोनाउन थी सघे थो, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन थी सघे थो, ईच इंडेफिनिट प्रोनाउन थी सघे थो, ईदर इंडेफिनिट प्रोनाउन थी सघे थो, या अहिड़े तरीक़े ॿिया इंडेफिनिट प्रोनाउन थी सघनि था जेके वाज़िह न कंदा सब्जेक्ट खे, क्लियर न हूंदो सब्जेक्ट, उहो मुबहम हूंदो। इन जा काफ़ी मिसाल थी सघनि था, जीअं मां ॿुधायां पई त सम आहे, ईच आहे, एवरी आहे, ऑल आहे, बोथ आहे, ऐं अहिड़े क़िस्म जा काफ़ी जेके आहिनि सब्जेक्ट उहे इंडेफिनिट प्रोनाउन तौर ते असां इस्तेमालु कंदासीं। जॾहिं असां इंडेफिनिट प्रोनाउन खे इस्तेमालु कंदासीं त असीं सब्जेक्ट जे मुताबिक़ जेको आहे असीं वर्ब इस्तेमालु कंदासीं, ऐं पोइ अहिड़े तरीक़े सां हिन कंदासीं इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। त इंडेफिनिट प्रोनाउन खां पोइ असीं अचूं था त असीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खे कीअं इस्तेमालु कंदा आहियूं। व्हेन वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स we use singular verb with singular subject and plural verb with plural subject। साॻी ॻाल्हि आहे, इनमें बि साॻी ॻाल्हि आहे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि थोरी डिफरेंट आहे जेका हिन खां उहा मां मूंखे ॿुधाइणु चाहींदसि। त हाणे पहिरीं ॻाल्हि त जेको असां सम वर्ड हिते इस्तेमालु कयोसीं, असीं चयोसीं त इहो जेको आहे इंडेफिनिट प्रोनाउन आहे, ऐं इहो साॻियो सम जेको आहे उहो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तौर ते इस्तेमालु थी सघे थो। पोइ असां कीअं सम्झंदासीं इहो सम जेको वर्ड आहे उहो इंडेफिनिट प्रोनाउन आहे या सम जेको आहे उहो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहे, इहो कीअं सम्झंदासीं। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो, जीअं करे असां लिखूं था सम आर born ग्रेट। हाणे सम खां पोइ असीं वर्ब आंदो आहे, पर जेकॾहिं चऊं सम ऑफ देम या सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी इट मीन्स देम मां या सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स मां कुझु, इट मीन्स हिते डिस्ट्रीब्यूशन जी ॻाल्हि थिए थी, तंहिंजे करे सम जेको आहे उहो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तौर ते इस्तेमालु थियो। जेकॾहिं सम खां पोइ कोई यानी ग्रुप या कलेक्टिव नाउन इस्तेमालु कंदा आहिनि त पोइ असां चवंदासीं सम जेको आहे इंडेफिनिट प्रोनाउन तौर ते इस्तेमालु थींदा। सम खां पोइ जेकॾहिं असां कोई ग्रुप आणियूं था, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द बॉयज़, सम ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द बुक्स, अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं यूज़ था कयूं त सम ऑफ द बुक्स माना बुक्स मां कुझु, सम ऑफ द स्टूडेंट्स मां कुझु, त हाणे इट मीन्स असीं डिस्ट्रीब्यूशन कयूं था। ऑल ऑफ द बुक्स असां डिस्ट्रीब्यूशन कयूं था, ईच ऑफ द बुक्स असां डिस्ट्रीब्यूशन कयूं था, नाइदर ऑफ द बुक्स असां डिस्ट्रीब्यूशन कयूं था। यानी डिस्ट्रीब्यूशन जॾहिं कयूं कंहिं ग्रुप मां, घणाईअ मां, त पोइ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सघिबो। ऐं जॾहिं असां डिस्ट्रीब्यूशन जी ॻाल्हि नथी हुजे, सिर्फ़ु असां उन सब्जेक्ट खे मुबहम रखूं था, सम आर born great, वन इज़ गोइंग, ईच इज़ वर्किंग हार्ड, ईच बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी इज़ गोइंग, नो बॉडी। हाणे असां पोयां ग्रुप न रखियो आहे, तंहिंजे करे इहो इंडेफिनिट प्रोनाउन आहे। तंहिंजे करे इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खे असां कीअं कंपेयर करे सघूं था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सां असां पोयां कोई बि नाउन या प्रोनाउन जेको कंहिं ग्रुप खे, कंहिं नाउन्स या प्रोनाउन जे कलेक्शन खे ज़ाहिर कंदो ऐं उन खां अॻु में ईंदड़ जेको वर्ड हूंदो उन जी डिस्ट्रीब्यूशन कंदो, तंहिंजे करे असां उनखे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन चवंदासीं। ऐं जंहिंखां इंडेफिनिट प्रोनाउन उहो जंहिंमें असीं यूज़ कयूं पर उन सां पोयां कोई नाउन या कोई कलेक्टिव या कोई ग्रुप कुझु न हुजे,
पोइ असां उन सां पोयों ख़ासि तौर ते जेको हूंदो उहो यानी ऑफ जो इस्तेमालु थी सघे थो या को वर्ब जो इस्तेमालु थी सघे थो, पर नाउन या प्रोनाउन जो ग्रुप ज़ाहिर न हूंदो, तॾहिं असां उन्हनि खे इस्तेमालु कंदासीं। ओके, असीं चवंदा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास। हाणे असां ॾिसूं था त ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हाणे स्टूडेंट्स मां हर हिकु, तंहिंजे करे असां डिस्ट्रीब्यूशन था कयूं, वर्ब असां सिंगुलर तॾहिं रखियोसीं। हा, ऑल ऑफ द मिल्क इज प्योर एंड स्वीट, हिते असां ॾिठोसीं ऑल ऑफ द मिल्क। हाणे हिते असां मिल्क जेको आहे उहो नाउन हूंदो इस्तेमालु, हाणे इन सां असां इज़ रखियो आहे, हालांकि ऑल सां असां प्लूरल बि रखी सघूं था, पर हीअं जॾहिं असां रखूं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर, जेकर असां ईच जाइ ते इस्तेमालु कयूं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, छो त आर प्लूरल खे ज़ाहिर कंदो, आर सम बोथ, इन्हनि सां जेकॾहिं असां यूज़ कंदासीं वर्ब त प्लूरल इस्तेमालु थींदो, पर हिते ऑल सां असां सिंगुलर इस्तेमालु कयो आहे। उहो छो त जॾहिं असां ऑल ऑफ द मिल्क इस्तेमालु कयो आहे, मिल्क जेको आहे अनकाउंटेबल आहे, तंहिंजे करे वर्ब जेको आहे सिंगुलर थींदो, पर जेकॾहिं असां हिते लिखूं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स त हाणे स्टूडेंट्स काउंटेबल आहे, पोइ असांखे हिते आर इस्तेमालु करणो पवे आहे। जॾहिं असां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जंहिंमें ख़ासि तौर ते ऑल जो इस्तेमालु आहे या बोथ जो इस्तेमालु आहे या सम जो इस्तेमालु आहे या मेनी जो इस्तेमालु आहे, अहिड़े क़िस्म जा वर्ड्स जेके प्रोनाउन तौर ते इस्तेमालु थियनि ऐं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तौर ते इस्तेमालु थियनि ऐं उहे प्लूरल हुजनि ऐं उहे प्लूरलिटी खे ज़ाहिर करनि, पर उन खां पोयां यानी इन्हनि वर्ड्स खां पोयां जेको असां नाउन इस्तेमालु कंदासीं उहो जेकॾहिं काउंटेबल हूंदो त पोइ असांजो वर्ब सिंगुलर थींदो, जेकॾहिं उहो वर्ब अनकाउंटेबल हूंदो त पोइ वर्ब असांजो जेको आहे उहो सिंगुलर इस्तेमालु थींदो। तॾहिं करे असांखे इहो ख़्यालु रखिणो पए थो जॾहिं असीं ऑल जो इस्तेमालु कयूं, जॾहिं असीं बोथ जो इस्तेमालु कयूं, जॾहिं असीं सम जो इस्तेमालु कयूं, जॾहिं असीं मेनी जो इस्तेमालु कयूं या अहिड़े क़िस्म जा ॿिया वर्ड जेके प्लूरल हुजनि ऐं उन सां पोयां काउंटेबल नाउन हूंदो त वर्ब जेको आहे प्लूरल हूंदो, जेकॾहिं हिते उहो नाउन अनकाउंटेबल हूंदो त पोइ वर्ब जेको आहे उहो सिंगुलर इस्तेमालु थींदो। नन ऑफ द फूड, हाणे फूड अनकाउंटेबल आहे, तॾहिं करे असीं वर्ब रखियो आहे इज़, पर जेकॾहिं असां चऊं था नन ऑफ द बॉयज़, हाणे बॉयज़ जेको आहे उहो काउंटेबल आहे, हिते हाणे असांखे वर्ब रखिणो पवंदो आर, नन ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल। हाणे अहिड़े तरीक़े जॾहिं असीं कोई बि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमालु कयूं त पोइ उनजे पोयां जेको नाउन हूंदो असांखे उन नाउन जो ख़्यालु रखिणो पवंदो, नाउन अनकाउंटेबल हूंदो त वर्ब सिंगुलर हूंदो, नाउन काउंटेबल हूंदो त वर्ब प्लूरल इस्तेमालु थींदो। त हाणे असीं इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खे जॾहिं इस्तेमालु कंदा आहियूं एज अ सब्जेक्ट त पोइ असांखे वर्ब यानी उन्हनि जे मुताबिक़ रखिणो पए थो, पर उन सां गॾोगॾु डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में असांखे इहो ख़्यालु रखिणो पवंदो त जेकॾहिं कोई बि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहे उन सां पोयां नाउन रखियलु आहे त उहो काउंटेबल आहे या अनकाउंटेबल आहे, काउंटेबल आहे त असांखे वर्ब प्लूरल, अनकाउंटेबल आहे त वर्ब असांखे सिंगुलर इस्तेमालु करणो पवे थो। त उन खां पोइ असां हाणे अचूं था हिकु ॿिए रूल ते, द टर्म अ नंबर ऑफ will always be plural and the number of will be singular. A number of, the number of. Meaning के इस दासी a number of and the number of. A number of जैसे असां इस्तेमालु कयासीं कंदासीं त वर्ब असांजो प्लूरल थींदो, जॾहिं the number of इस्तेमालु कंदासीं त वर्ब असांजो प्लूरल थींदो। जीअं मूं हिते सेंटेंस लिखियो आहे a number of men were walking in Chiltown. हा ॿियो सेंटेंस आहे the number of men was walking in Chiltown. हाणे असां ॾिसंदासीं त इहो इन ॿिन्हिनि में डिफरेंस कहिड़ो आहे। a number of men were, the number of men was, हे प्लूरल तौर ते इस्तेमालु थियो ऐं हिते असां was सिंगुलर तौर ते इस्तेमालु कयो आहे, छो त जॾहिं असां a number of men सां इस्तेमालु कयूं इन जो मक़सदु आहे a number of men जो मतिलबु आहे त number of men काफ़ी आहिनि, number of men जेके उहे काफ़ी आहिनि। हिकिड़ो a number of men ही आहे माण्हुनि जो तादादु, हिकिड़ो ग्रुप, a number of men ही बि आहे, a number of men ही बि आहे, a number of men ही बि आहे, यानी इन जो मतिलबु number of men जेके आहिनि उहे काफ़ी आहिनि। असां उन्हनि मां कंहिं हिकु ॾांहुं यानी इंडेफिनिट इशारो तौर ते रेफर कयूं था, जेके उन इशारो कयूं था त पोइ असां अच कंदासीं, माना इन्हनि मां कोई बि हिकिड़ो a number of men, माना माण्हुनि जे ग्रुप मां कोई हिकिड़ो ग्रुप, माण्हुनि जे ग्रुप ॾांहुं कोई हिकिड़ो ग्रुप, a number of men। इट मीन्स इहो मक़सदु मिले थो
या इहो सेंस थो मिले त तादाद माण्हुनि जो ग्रुपनि जो काफ़ी आहे, उन्हनि मां कोई हिकिड़ो, तंहिंजे करे असांखे वर्ड यूज़ करणो पवंदो प्लूरल। जॾहिं असीं यूज़ था कयूं द नंबर ऑफ मेन, इट मीन्स असां कंहिं स्पेसिफिक नंबर ॾांहुं इशारो कयूं था, कंहिं सभिनी ॾे हिकिड़े स्पेसिफिक कंहिं नंबर ॾांहुं इशारो कयूं था, या स्पेसिफिक ग्रुप ॾांहुं इशारो कयूं था, यानी डेफिनेट ग्रुप ॾांहुं। तंहिंजे करे पोइ असां द जॾहिं असां इस्तेमालु कयूं था, इट मीन्स वी आर रेफरिंग टू डेफिनेट ग्रुप ऑफ people of men or specific group of men। जॾहिं असीं अ नंबर ऑफ मैन चऊं था त अनस्पेसिफिक थी वञे थो ऐं इनडेफिनेट थी वञे थो, माना मुख़्तलिफ़ ग्रुप मौजूदु आहिनि, उन्हनि मां कंहिं हिकिड़े ॾे इशारो कयूं था, इट मीन्स असांजो इशारो जेको आहे कंहिं हिकु ॾांहुं में वञे थो, माना तंहिंजे करे उहो असांजो यानी वर्ड जेको हूंदो उहो प्लूरल इस्तेमालु थींदो। ऐं द नंबर ऑफ मैन जॾहिं असां इस्तेमालु कयूं था, इट मीन्स वी आर रेफरिंग टू पर्टिकुलर पर्पस और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल मेन। तंहिंजे करे पोइ असां जेको आहे द नंबर ऑफ जॾहिं असां इस्तेमालु कयूं द नंबर ऑफ मेन, त पोइ असांखे वास या कोई बि वर्ड हूंदो उहो सिंगुलर में इस्तेमालु करणो पवंदो। टू बी जो वर्ड पास्ट जो आहे वास इस्तेमालु कंदासीं, प्रेज़ेंट हूंदो त इज़ इस्तेमालु कंदासीं। जेकॾहिं असां चऊं था द नंबर ऑफ मेन वॉक या वॉक्स, असां पोइ यूज़ कंदासीं वॉक्स। पर जॾहिं हुजे अ नंबर ऑफ मेन वॉक या वॉक्स, पोइ हिते असां इस्तेमालु कंदासीं वॉक, हिते वॉक इस्तेमालु कंदासीं, अ नंबर ऑफ मेन सां वॉक, ऐं हिते जेके द नंबर ऑफ मेन वॉक्स इस्तेमालु कंदासीं। वॉक्स सिंगुलर आहे, वॉक प्लूरल आहे। त अॼु असीं जेको आहे सम्झोसीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जे टिनि रूल्स खे। हिकिड़ो त इंडेफिनेट प्रोनाउंस खे असीं कीअं इस्तेमालु कंदासीं, ऐं ॿियो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस खे जॾहिं इस्तेमालु कयूं था त पोइ असांखे कहिड़ो ख़्यालु रखिणो पए थो, छाकाणि त कुझु डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जेके आहिनि उहे सिंगुलर आहिनि, कुझु डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जेके आहिनि उहे प्लूरल आहिनि। सिंगुलर सां त हमेशह सिंगुलर इस्तेमालु कंदासीं। उहे कहिड़ा आहिनि सिंगुलर, जीअं मां ज़िक्र करे वियुमि, ईच आहे, एवरी आहे, इधर आहे, नाइदर आहे, नन आहे, वन आहे, अहिड़े तरीक़े जे सिंगुलर। पर जेके प्लूरल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आहिनि उहे सम आहे, ऑल आहे, बोथ आहे, मेनी आहे, अहिड़े क़िस्म जा हूंदा त इहे जेके आहिनि सो प्लूरल आहिनि। पर जॾहिं प्लूरल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमालु कयूं त पोइ असांखे नाउन जो ख़्यालु रखणो पवंदो त उहो काउंटेबल आहे या उहो अनकाउंटेबल आहे। काउंटेबल हूंदो त वर्ब प्लूरल थींदो, अनकाउंटेबल हो त वर्ब जेको आहे असांजो उहो सिंगुलर तौर ते इस्तेमालु थींदो। त ऐं उन खां सवाइ मूं हे टर्म अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, इहो गॾु सम्झोसीं अ नंबर ऑफ जेको आहे उन सां असां जेको वर्ब इस्तेमालु कयूं पिया प्लूरल, ऐं द नंबर ऑफ सां असां वर्ब इस्तेमालु कयूं था सिंगुलर, छाकाणि त अ नंबर ऑफ अनस्पेसिफिक ग्रुप ॾांहुं, कंहिं मख़सूस ग्रुप ॾांहुं न बल्कि सभिनी ॾांहुं इशारो थी वेंदो। ऐं द नंबर ऑफ जॾहिं इस्तेमालु कयूं था त असां कंहिं स्पेसिफिक कंहिं मख़सूस ग्रुप ॾांहुं इशारो कयूं था, तंहिंजे करे पोइ असांजो उहो सिंगुलर थी वेंदो। अॼु असीं यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जे टिनि रूल्स खे सम्झोसीं, ऐं इन खां सवाइ इन जा ॿिया बि रूल्स आहिनि। इंशाअल्लाह जेको आहे असां सुभाणे वारे पंहिंजे इन क्लास में वधीक उन जा रूल्स सम्झंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।